What we discussed in last lecture? Anybody? सर Yes. हमने देखा था फूरियर कोसाइन इंटीग्रल और फूरियर साइन इंटीग्रल। Okay, that means we started our new unit. जो नहीं थे उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ. We started our new unit Fourier transform. Okay, but before going to discuss about the Fourier transform, Fourier integral is the main concrete for Fourier transform. So first we discuss about the Fourier integral. Okay, so in Fourier integral we already discussed about the theorem. Okay, Fourier integral theorem. What is it? So if the function f of x is piecewise continuous in every finite interval in minus infinity to infinity and absolutely integrable in minus infinity to infinity, then the Fourier integral is, this is the definition for Fourier integral. What we used, okay, जो हम use कर रहे हैं, we are using this formula for Fourier integral. So 1 upon pi integration 0 to infinity a omega cos omega x plus b omega sin omega x d omega. Okay, where a omega is integration minus infinity to infinity f of t cos omega t dt, and what is my b omega? B omega is integration minus infinity to infinity f of t sin omega t dt. Okay, so this is the Fourier integral. After discussion of Fourier integral, we discuss about some notes for that, you can see here. Okay, then we also discuss about the Fourier cosine. There are three concrete part in integral, Fourier integral. Number one, group, yes, thank you. Okay, in group, please mute your audio. Is there any problem? Group, are you there? Okay, thank you. Okay. Okay, in Fourier integral, there are three concepts. Number one, Fourier integral itself. Number two, Fourier cosine integral. And number three, Fourier sine integral. Okay, so in Fourier cosine integral, the function is even. Okay, it is related to even function because cosine is even function. So f of t is an even function. So f of t into cos omega t is even function, and f of t into sin omega t is odd function. Due to odd function, integration of f of t sin omega t will be 0 because there is negative and positive limit. So we have only a omega part. So the Fourier cosine integral will be f of t is equal to 1 upon pi integration 0 to infinity a omega cos omega x d omega, and where a omega will be, our original a omega is integration minus infinity to infinity, but the integrand is even, so we can write down as 2 times and we start from 0 to infinity. Okay, so f of t cos omega t, we consider original image, we don't consider the mirror of that. Okay, mirror image of that. So here 2 times integration 0 to infinity f of t cos omega t dt. So these both the formula are useful to find the Fourier cosine integral. Then we already discussed about the Fourier sine integral, and in Fourier sine integral f of t will be odd function. So f of t, if the f of t is odd function, then f of t cos omega t is also odd function, and f of t sin omega t is even function. So due to odd function f of t cos omega t odd function, the integration minus infinity to infinity f of t cos omega t dt will be 0. Okay, because we know that the one limit is negative and one limit is positive, and integrand must integrand is odd, then the value of that integrand integration will be 0. Okay, so due to that, that part a omega part will be 0 for Fourier sine integral, and we have only b omega. So what is our b omega and f of t? So the Fourier sine integral is f of x is equal to 1 upon pi integration 0 to infinity b omega sin omega x d omega, where b omega is again 2 times because it is even function. So 2 times integration 0 to infinity f of t sin omega t dt. Okay, any confusion up to here, student? Any confusion?
Dear student, No, is there sir. any? Okay. Okay. Then we go for next. Okay. This note is very important to find this sum integration part. Okay, so here you can see that the Fourier integral at a point of discontinuity of f of x is defined as f of x is equal to 1 upon pi. This is the original Fourier integral theorem. So if you want to find this integral at discontinuity point, then you have to go through this formula here. Sorry, we have here plus, so f of x plus f of x minus, it is looks like that, x plus f of x minus divided by 2. Okay, this is very important concept, so keep in your mind. Okay, some useful results whenever we need the help of these three integral, then we can take that. Okay, last lecture we discussed first example. Find the Fourier integral representation of the function f of x is equal to 1 0 if modulus x less than 1, if modulus x greater than 1. Hence evaluate integration 0 to infinity sin omega cos omega x omega divided by omega d omega. Okay, is there any doubt in this example, student? If you have not, then we can go for 2. Okay, those students who are absent, they cannot raise the question. Okay, but those students who have attended my last class, and if you have doubt, then please inform me so I can repeat it. Okay, anybody? Is there any doubt, student? No, sir. No, sir. Okay, okay. Then we go for second example. Find the Fourier cosine and sine integral. Okay, we have to find two things here: Fourier cosine and Fourier sine integral of f of x is equal to e raised to minus kx and k greater than 0 and x also greater than 0. Okay, so here sometimes you made a mistake, you make a mistake. Why? Because you don't focus on this part. Same example will be asked in Fourier transform. How it will be? Find the Fourier cosine and sine transform. Okay, but here integral, so you have to go with the Fourier integral formula. Okay, cosine and sine formula. So look at here. Is it visible? My notebook pages are visible or not? Yes, sir. Visible. Okay. Okay, this is our example. Find the Fourier cosine and sine integral of f of x is equal to e raised to minus kx, x greater than 0, k greater than 0. Okay, so we want to find the Fourier cosine first. So we start with that. The Fourier cosine integral is f of x is equal to 1 upon pi integration 0 to infinity a omega cos, sorry, a omega here. In our notation, it is e omega and cos omega x d omega. Okay, so this is my formula. Now where a omega equal to 2 times 0 to infinity f of t cos omega t dt. Okay, this is my formula. Okay, here I take lambda in place of omega. There is no issue, you can take anything, but as per your given statement you can consider it. Okay, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, तो आप लैम्बडा भी ले सकते हो, ओमेगा भी ले सकते हो, as per your convenience. Okay, so यहाँ पे f of t cos omega t dt is our original formula, so you can go with that. 2 times integration 0 to infinity. What is my f of t here? My f of t is e raised to minus kx. Okay, so f of t will be e raised to minus kt. Okay, because I am substituting the t in place of x, so f of t is equal to e raised to minus kt. So I replace that e raised to minus kt cos omega t dt. Okay, now what is the formula for this? Anybody? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन E raised to 80 upon a square plus b square a वन मिनट e sin raised a to cos 8, yes, a square plus b square, yes, a cos bs
यस cos b, अगर आप x लेते हो तो x, ओके, प्लस B sin BX. sin bx. Okay, here there is no capital A and B. Okay, there should be small a and b. Okay, done. This is our formula to find integration a to b e raised to ax cos bx dx. Okay, we already know this and we already discussed about this. Clear? So e raised to at upon a square plus b square, a cos bx plus b sin bx, and the limit will be outside a to b. Okay, in whole bracket. Huh? Clear? Okay. So as per this formula, you can see here our a, small a is equal to minus k. Okay, and small b is equal to omega. Yes or no? Give me confirmation. Yes, sir. Okay, so e raised to minus kt divided by a square plus b square, that means k square minus k whole square means k square plus omega square, bracket a means minus k, cos b means omega, plus lambda, in place of lambda omega, b is my omega, so omega sin omega t, integration 0 to infinity. Any confusion? How many students understand this step? Please raise your hand. How many students understand this step? Please raise your hand. Good. Please raise your hand. Still many students are there, but they don't raise their hand. Any doubt? Jagrat, Vikas, Chintan, Ankita, Dhyanam, Dhruva, Om, Mohammad Safi, Vivek, Lakshmi Narayan, Ishan. You don't understand this step? Please give me confirmation, then I can repeat it. Student Chintan, are you there? Vikas, Dhyanam, Dhruva, Om, Mohammad Safiya, Lakshmi Narayan. Most of the students are understand, but these few students are don't respond. Okay, so we can go ahead. Okay. Okay, you put your hands down. Okay, now then first we apply, or first we substitute infinity. So what we get? E raised to minus infinity into something, but e raised to minus infinity will be 0. So first value 0. Okay, I am substituting second value 0. So minus e raised to 0 divided by k square plus omega square, bracket minus k cos 0 plus omega sin 0. Okay, so here if you substitute here, e raised to 0 means 1, ये 1 हो जाएगा. Okay, then this will be 1 and this will be 0. Okay, so we have 2 times. Okay, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 2 minus 1 upon k square plus omega square minus k into cos 0 means 1. Okay, now if you simplify that, then minus minus plus 2k divided by k square plus omega square. Done. Okay, so what is my Fourier cosine integral? The required Fourier cosine integral is f of x is equal to 2 upon pi, because 2 is there. So 2 upon pi, 1 upon pi into 2, integration 0 to infinity a lambda की वैल्यू जो 2 था वो मैंने यहाँ पे रख दिया. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी k अपॉन k स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर. Dear student, 1 minute, there is an issue. Oh yes, okay, that means integration 0 to infinity k upon k square plus omega square, okay, cos omega x into d omega. So this is the required cosine integral. Any confusion up to here?
student? No, sir. Okay, thank you. Okay, then next, sine integral. We want to find the sine integral also. So the sine integral is f of x is equal to 1 upon pi integration 0 to infinity b omega sine omega x d omega. Okay, this is our original formula for sine integral. Now, what is my b omega? So b omega is equal to 2 times integration 0 to infinity f of t sine omega t dt. Now what is my f of t? F of t is e raised to minus kt. Okay, so I am replacing that e raised to minus kt into sine omega t dt. Now again the formula will be same, but first comes sine and then minus in between both the terms. So minus and last one is cos. The position of sine and cos will be changed, and in between that there is a minus sign. That is the change in formula. So 2 times, again here a is equal to minus k and b is equal to omega. So I am replacing that in the formula. So e raised to minus kt upon k square plus lambda square minus k sine omega t. Okay, so lambda square nahi, omega square, sorry, minus k sine omega t minus omega cos omega t. Okay, integration 0 to infinity. Again I replace infinity in place of t, so we get e raised to minus infinity, it will be 0. So minus second limit, I am substituting second limit, so minus e raised to 0, it gives 1 k square plus omega square, then minus k into sine 0, this gives you 0. So this is 0. Okay, so and here cos 0 will be 1. So we have only omega. Okay, so here minus omega because there is a minus between them. So minus minus plus 2 omega divided by k square plus omega square. This is my b omega. Okay, now what is my required sine integral? The required sine integral is f of x is equal to 1 upon pi integration 0 to infinity b lambda sine, b omega sine omega x d omega. Okay, so here 2 will be outside. So 2 upon pi integration 0 to infinity, this is omega upon k square plus omega square into sine omega x d omega. Okay, any confusion in full example? Full example, anybody? Please give me your confirmation. Sir. No, sir. Okay. What about others? No, sir. Okay. Here we find a omega and b omega separately, but for Fourier cosine integral and Fourier sine integral. Okay. Anybody? Any doubt? How many students don't understand this example? Please raise your hand. Karina, you don't understand? (19EC046). Yes, C understand. Okay. Okay, then we go for next. So we complete this example. Now we go for example number 3. Yes, it is very good. Express f of x is equal to 1 and 0. Okay, 1 for 0 less or equal to x less or equal to pi, and 0 for x greater than pi as a Fourier sine integral, and hence evaluate integration 0 to infinity 1 minus cos pi omega divided by omega d omega. Okay, clear? Okay, तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा? चलो, हाउ वी कैन डू दिस एग्जाम्पल? गिव मी योर फ्लो ऑफ द एग्जाम्पल. चलो एक्सप्लेन करो तो, क्या करेंगे इसके लिए? ये एग्जाम्पल में हम क्या क्या करना पड़ेगा हमको? चलो चलो जल्दी बताओ.
या फिर मैं बताऊं नंबर? चलो वही करते हैं हम। समीप 19 EC 050, समीप पटेल, आर यू देयर? समीप, am I audible, student? Yes, sir. Okay. Ankita Pal 19 EC 032, how you can do this example? Okay, Samip is there, but he is right only post. Post a comment. Okay. Ayushi 19 EC 015. Yes, sir. Okay. What is the flow of the example? Let me. First we have to find Fourier sine integral. For Yes. that we have to put limit for 0 to pi we have to put 1, and for greater than x is greater than pi we have to put 0, f of Good. t. Good. Very good. Okay. So Yeah. which Fourier coefficient will find for this? B lambda, B omega, or A omega? B omega. Yes. Good. Very good. And then from that Fourier sine integral we go for the deduction part. Okay, but first we concentrate up to here. So for that we have to find Fourier sine integral. Okay, so look at here, Fourier sine integral. Okay, is it visible? Yes, sir. Okay, so express f of x is equal to 1 0, 0 less or equal to x less or equal to pi, x greater than pi as a Fourier sine integral, and hence evaluate this integral. Okay, so here the Fourier, okay, here we have lambda, so we go with the lambda. ओके यहाँ पे ओमेगा है. ओके चलो ओमेगा से चलते हैं, नो प्रॉब्लम. आपकी जो स्टेटमेंट दिया है उसी तरीके से हम करेंगे. ओके, तो द फूरियर साइन इंटीग्रल वी नो दैट. ओके, तो फूरियर साइन इंटीग्रल विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी बी ओमेगा साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा. ओके, दिस इज माय फॉर्मूला number 1, where b omega is equal to 2 integration 0 to infinity f of t sin omega t dt. Now in 0 to infinity function is distributed 2 times, so a function will be divided into 2 parts, 0 to pi and pi to infinity. So 0 to pi the function will be 1, so 0 to pi 1 sin omega t dt plus integration pi to infinity function is 0, so 0 sin omega t dt. Okay, so this part will be 0, so there is no discussion for that. So here 2 integration 0 to pi, here we have 2 integration 0 to pi sin omega t dt. Okay, so what is the integration of sine? Minus cos, minus cos lambda t divided by, sorry, not lambda, minus cos omega t divided by omega. 0 to pi is there. If I substitute pi first, so we have 2 upon omega outside minus cos omega pi plus cos 0, because there is minus and second limit का minus एक दूसरा आएगा, that means minus minus plus, so minus cos omega pi plus cos 0. Okay, now what is the value of cos 0? Cos 0 will be 1, so we have 2 bracket 1 minus cos omega pi, because we know that the cos n pi will be minus 1 raised to n, but we don't have any idea about omega, so we keep as it is.
सो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 minus cos omega pi divided by omega. Okay, now this is my b omega, so I am substituting this in given equation 1. Okay, यहाँ पे जो equation 1 लिया है उसमें हम substitute करेंगे. So we get f of x is equal to 2 by pi integration 0 to infinity 1 minus cos omega pi divided by omega sin omega x d omega. Okay, this is our equation number 2, and this is required Fourier sine integral of given function. Okay, any confusion up to here, student? Yes sir. Where is सर इसमें अपना फूरियर साइन इंटीग्रल भी क्यों लिया, लाइक सम देख के हमें कैसे पता चलेगा? no, it is given, Tirth, it is given in statement. Okay, so whatever you want to find, there is a given or there is a mention in your statement. Okay, any other doubt, student? Good, I like question. Okay, Sir, can you scroll up? scroll up. Yes, it's okay. No, sir. Or Okay. Now, okay. yes, sir. Complete. Okay, we have find b omega. Yes, b omega. Okay, sir. That's the doubt I have. Okay, no problem. Any other? Good. ऐसे आप इंटरेक्शन करोगे तो मुझे मजा आएगा, है ना? नहीं तो फिर ये ऑनलाइन में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बोलता रहता हूँ, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो. यस सर ऐसे उसके अलावा. ओके, एनी अदर डाउट, एनीबॉडी? Okay, good. Then, okay, this is our required Fourier sine integral. Okay, now we concentrate on next. What we want to find? We want to find the integration of 0 to infinity 1 minus cos pi omega upon omega d omega. Okay, if you do correctly this example or this Fourier sine integral, then automatically most of the terms will be set there. For example, you can see here we have 0 to infinity, and in our answer there is 0 to infinity 1 minus cos pi omega. Okay, there is a 1 minus cos pi omega divided by omega and d omega. Okay, d omega. Okay, now what I want to reduce, I want to eliminating this term with value 1. Then I got the answer. So what is the value for x? What we can do? x की जगह पे हम क्या रखेंगे तो वो 1 हो सकता है. Guess the value. Okay, because इसको 1 बनाएंगे तभी हम इतना हमको मिलेगा. Okay, अगर वो मिल गया then we say that it is the pi by 2 into f of x, then we go further. Okay, but इसको 1 बनाने के लिए मुझे x क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? कौन बताएगा? When sin will be pi 1? by 2 omega. Yes, pi by 2. Okay, so here I write down this equation 2 in another way, and that is 0 to infinity 1 minus cos lambda pi divided by lambda sin omega, sorry for that. Okay, omega, here it is also omega and d omega is equal to pi by 2 into f of x. We can write down this way. Okay, now pi by 2 into f of x is 1 0 0 less or equal to x. Okay, what is my f of x? F of x is 1 and 0 for 0 to pi and x greater than pi. So यहाँ पे मैंने substitute कर दिया 1 and 0 0 less or equal to x less than pi and x greater than pi. Okay, यहाँ पे मैंने equal to नहीं लिखा है. Okay, क्योंकि we have to find it. Okay, अब यहाँ पे discontinuity कहाँ पे है? कौन से पॉइंट के लिए वो discontinuity है? Anybody? Pi.
पाई। I ओके, के लिए तो जब भी यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन होता है तब हम थर्ड केस कंसीडर करेंगे और वो डिसकंटिन्यूटी के लिए। तो वो कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको नोट में दिखाया था, x प्लस जो भी पॉइंट है वो f ऑफ x माइनस डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f ऑफ x प्लस? x प्लस मीन्स x थोड़ा इंक्रीजिंग, मीन्स थोड़ा बड़ा उससे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा पाई, तो पाई प्लस मीन्स पाई प्लस समथिंग, मीन्स वो पाई से बड़ा है। तो पाई से बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? ये दोनों में से कौन सी आएगी? 0. 0। ओके, सो देर इज अ 0 प्लस एफ ऑफ पाई माइनस मीन्स पाई से छोटी वैल्यू, तो वो कौन से इंटरवल में जाता है? फर्स्ट वन में, है ना? तो One. we put it 1 divide by 2, so here we have 1 by 2, okay, for x is equal to pi, and that is our discontinuity point. Okay, तो यहाँ पे मेरा 1 by 2 हुआ। अब now I multiply pi by 2 inside, so what we get here? Pi by 2 0, फर्स्ट मेरा था 1, तो 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2। सेकंड था 0, तो पाई बाई 2 इंटू 0 0, एक्स ग्रेटर देन पाई। एंड यहाँ पे पाई बाई 2 आंसर आया, तो पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 आंसर आया, तो 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 it gives pi by 4, x is equal to pi. Now put x is equal to pi by 2. So what we get here? 0 to infinity 1 minus cos lambda pi, sorry there is omega, so omega pi, okay, omega pi divided by omega into d omega is equal to, अब यहाँ पे कहीं पर भी x है नहीं, तो यहाँ पे तो रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा वही का वही आएगा, पाई बाई 2 0 एंड पाई बाई 4, पाई बाई 2 व्हेन इट विल बी 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन पाई, एंड पाई का सॉरी x ग्रेटर देन पाई के लिए वो 0 हो जाएगा, एंड जब x इज इक्वल टू पाई है तब वो पाई बाई 4 हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? सर यस इसके आगे का पेज करिए ना। yes yes, now is it okay? नहीं, उसके भी आगे। Okay, तो सर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट लेते हैं, तो हमें दो पार्ट में उसे डिवाइड नहीं करना है, मतलब 0 to पाई और पाई to इनफाइनाइट। नहीं करना है। जब भी आपको फूरियर इंटीग्रल पूछा जाए और उसमें डिडक्शन पार्ट है तो वो इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें क्या है कि हमको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। इज इट ओके? वही है ना क्वेश्चन Yes, आपका? ओके, लेकिन यहाँ पे ख्याति एफ ऑफ टी ही नहीं है, तो व्हाई वी डू दैट? इंटीग्रेशन में तो नहीं है ना एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ Yes, एक्स। sir. हाँ, सो वी कैन नॉट डिवाइड इट। Okay, sir. Okay, now got it? Yes, sir. Okay, is there any question, student? Tirth, understand? Yes, sir. Okay. Anybody have any problem? Yes, yes, Drumil, good. सर हमें लास्ट में x की वैल्यू दी पाई बाई 2, हाँ, yes. तो साइन ऑफ ओमेगा पाई बाई 2 होगा ना? हमें चाहिए साइन ऑफ पाई बाई 2 चाहिए ना? हाँ, साइन ओमेगा पाई बाई 2 हुआ ना? ओके, लेकिन ये जो है वैल्यू 1 कर, सॉरी, हमें साइन की वैल्यू 1 करनी है ना अबे, हाँ 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 1 करना है ना? तो हम x की जगह पाई बाई 2 ओमेगा ले सकते हैं। हाँ, वो भी ले सकते हो, वही सही है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, दैट इज करेक्ट। लेकिन ओमेगा वो वैल्यू क्या की है? पता नहीं है ना ओमेगा की वैल्यू, हाँ हाँ, ले सकते हो, यस पाई बाई 2 यस तो नहीं ले सकते ना। यस यस, सॉरी, दिस इज करेक्ट, यस यस, राइट, यू आर राइट। हाँ ध्रुमिल, ओके, हाँ ओके। अब दूसरा, ये थोड़ा वेरिएशन होगा ध्रुमिल, कब? जब आपको उसका पीरियड दे दिया है तब, अंडरस्टैंड? जैसे हम बोलते हैं कि साइन एंड कोसाइन कितना पीरियोडिक है? 2 पाई पीरियोडिक है,
है ना। लेकिन अगर वो पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा दिया है देन यू कैन टेक x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अंडरस्टैंड ध्रुमिल? यस सर। ओके लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है इसलिए हमको ओमेगा से डिवाइड करने का। यू आर राइट ध्रुमिल। ओके तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। क्लियर एवरीबडी? सो यहाँ पे आप जैसे ही ये ओमेगा है हमारा तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल होके वहां पे अकेला पाई बाय 2 होगा, देन वी हैव 1। ओके थैंक यू ध्रुमिल। ओके एनीबडी? एनी अदर डाउट? सर यस हमने फूरियर कोसाइन इंटीग्रल एंड साइन इंटीग्रल की कंडीशन है एफ ऑफ हाँ टी इवन और ऑड होने चाहिए। हाँ इवन एंड ऑड होना चाहिए। हाँ तो ई रेस टू नहीं नहीं माइनस नहीं के एक्स तो कुछ भी नहीं है, तो हमें कैसे फाइंड किया उसका? ओके 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 गुड क्वेश्चन। अब देखो एफ ऑफ एक्स इवन होना चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है उसके लिए, लेकिन वो जो डिडक्शन पार्ट किया है उसका जो डेरिवेशन किया है उसके लिए उन्होंने उसको एज्यूम किया था कि एफ ऑफ एक्स विल बी इवन फंक्शन, देन वी कैन गो फॉर द कोसाइन एंड साइन इंटीग्रल। It is one type of derivation, okay, reduction. There is a link between Fourier integral and Fourier cosine and sine. Okay, but you can find the Fourier cosine and sine integral of any function which has the integration exist. There is a condition. ध्रुमिल डन। आप कोई भी फंक्शन का वो फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो उसका डेरिवेशन है, जो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट हियर। ओके गुड क्वेश्चन है ध्रुमिल। यहाँ पे देखो ये जो हमने डेरिवेशन किया था ना ध्रुमिल, क्लियर, ये फूरियर इंटीग्रल का ये मेन थियरम है। ओके तो उन्होंने जो यहाँ पे जो रिलेशन बनाया इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, ओके तो उसके लिए उन्होंने जो रिलेशन बनाया उसके लिए उन्होंने एफ ऑफ टी को इवन लेके डिडक्शन पार्ट किया है। क्लियर? दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, मैं आपको अगर हम ये कोई लाइन से अंडरस्टैंड करें, फॉर एग्जाम्पल ये ओके तो ये ऐसी सिचुएशन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यू कैन सी कि अगर ये आपका मिडल पॉइंट है 0 और ये आपका कोई पॉइंट है a एंड ये माइनस a है, ओके तो जब ये फूरियर इंटीग्रल मीन्स ये पूरा है ना, पूरे के लिए हम डिस्कस करेंगे जब भी इस टाइप का सिग्नल है तब। लेकिन अगर आपका सिग्नल यहीं पे है ना, तो व्हाई वी थिंक अबाउट द नेगेटिव पार्ट? अंडरस्टैंड ध्रुमिल? दैट्स व्हाई दे डिड्यूस दैट फॉर द इवन पार्ट, okay, and they say that cosine integral, and in this interval they say that the removal है ना, मीन्स उसको रिमूव कर दिया उन्होंने। ध्रुमिल इज इट ओके नाउ? अंडरस्टैंड? यस गॉट सर। योर? ओके सर यस सर तो हम एफ ऑफ एक्स जो आता है पूरा फूरियर हाँ सीरीज का आंसर, हाँ तो हाँ उसमें ए ओमेगा वाला जो टर्म है वो टर्म हम कोसाइन इंटीग्रल बोल सकते हैं और दूसरा साइन इंटीग्रल। हाँ वो दोनों का मर्ज करना पड़ेगा आपको, तब जाके वो फूरियर इंटीग्रल में वापस चला जाएगा। हमने क्या अपन किया डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, वो एफ ऑफ क्या? एक्स की जो वैल्यू आई हाँ तो उसके अंदर जो ए ओमेगा वाली टर्म है ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स, हाँ वो टर्म कोसाइन इंटीग्रल हो गया और दूसरा वाला साइन इंटीग्रल। नहीं 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 नहीं, हाँ मीन्स वो दोनों का कम, हाँ सही है आपकी बात कि वो दोनों का एडिशन हुआ है। तो वही ना। हाँ वही हुआ लेकिन उसके लिए आपको क्या दिया है, सिर्फ एक ही पार्ट बोला है तो एक ही करेंगे, सेकंड पार्ट बोला है तो सेकंड। लेकिन अगर फूरियर इंटीग्रल टोटल पूछा गया है तब जाके आपको दोनों पार्ट करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो आपको किस टाइप का चाहिए। इज इट ओके ध्रुमिल? यस पर हाँ आंसर तो कहीं से भी लिख सकते हैं ना, ये आएगा एफ ऑफ एक्स का, उसमें से लिख सकते हैं कोसाइन इंटीग्रल साइन इंटीग्रल। हाँ अगर वो आपको फूरियर इंटीग्रल मिल जाता है देन यू कैन कंक्लूड दैट। हाँ सही है, क्योंकि वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। डन? यस सर। ओके एनीबडी? Yes, sir. यस ख्याति यस।
Okay. Now, if you have no doubt, then we go for further. Is it okay, student? Can we go further? Yes, sir. Okay, okay. Then we will go for our main part of the unit, Fourier transform and inverse Fourier transform. Okay. So before going to discuss this, first I want to discuss about the application. Okay. So पहले application उसकी देख लेते हैं. Then we go for the next. Okay. Application of Fourier transform. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. Fourier transform have many applications. Okay. Fourier transform के पास बहुत सारी application है. Whenever you require that, you can apply directly. There is no any restriction. But restriction we will discuss that. Okay. Existence होना चाहिए कुछ चीज़ का. उसके बाद आप उसको use कर सकते हो. Okay. So Fourier transforms have many applications. Mainly it converts time domain signal to frequency domain सिग्नल्स. ओके. तो उसका मेन यूज क्या है कि वो जो डोमेन है सिग्नल, ओके, तो उसको वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर करता है. ओके. दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म इसीलिए यूज किया जाता है कि वो किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल चीज में वो ले जाता है, इसीलिए उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ओके. लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म, यस सर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म है, वो सभी टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करते हैं ना. तो हम ये फोर ट्रांसफॉर्म का मतलब इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिविजुअल उसके एप्लीकेशन के हिसाब से, जहां पर भी आपको जिस टाइप का, फॉर एग्जांपल जेड ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि वहां पे कौन सा डेटा सेट होगा आपके पास, डिस्क्रीट डेटा सेट होगा. हाँ, या वहां पे आप ये फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं यूज कर सकते हो, है ना. सेम तरीके तो से सर लाप्लास, अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल है तो हम यहाँ पे लाप्लास यूज करेंगे, और डिस्क्रीट है तो वहाँ पे हम जेड यूज करेंगे. Yes. तो ये फूरियर है वो किस सिग्नल फॉर्म के लिए फूरियर है? जहां पे लाप्लास फेल हो जाता है वहां पे फूरियर भी लगा सकते हो ना. कहीं ना कहीं तो उसका वो रिस्ट्रिक्शन आएगा ना. तो सर फूरियर सीरीज किसके लिए है? फूरियर सीरीज जो है वो पूरा अलग है. वो फूरियर सीरीज जो आप पार्ट जो अभी पढ़ रहे हो वो पूरा अलग है. वो एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है. आप उसको मिक्स मत करो इसके साथ. वो क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. ओके. अब वो आपको जब सिग्नल प्रोसेसिंग होगा या फिर कोई सर्किट थियरी होगा तब वहां पे एफ ऑफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर का रोल नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसका सीरीज रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है. ओके. तो आप उसको बोल सकते हो कि दिस विल बी एक्स स्क्वायर. अंडरस्टैंड? ओके सर, लेकिन मेनली सभी फॉर्मूला फूरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म के तो सेम ही है, ज्यादातर सेम ही है. ज्यादातर सेम है, ज्यादातर सेम है. और जो डिडक्शन पार्ट है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही समझाया था और अभी भी रिपीट करने वाला हूँ कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें ना तो उसका मेन कॉन्सेप्ट एक ही है कि उसको बोलते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. ओके. तो जब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बात आती है तो उसके बाद बहुत सारे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन किए गए, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन द कर्नल ऑफ दैट. ओके. और वो कर्नल अगर आप चेंज कर देते हो देन ट्रांसफॉर्मेशन विल बी चेंज. और अगर वो कर्नल आपको हेल्पफुल नहीं रहता है तो आप दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके भी आपका जो वर्क है वो आप कर सकते हो. अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके. ओके. हाँ. देन एट विच सिग्नल्स कैन बी एनालाइज. ओके. जहां भी सिग्नल को हम एनालाइज कर सकते हैं वहां पे हम टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में जाना है, देन वी कैन यूज फूरियर ट्रांसफॉर्म. अनलाइक, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने, अनलाइक Laplace transform, Fourier transform does not have full S plane. It just have the frequency j square pi f plane. Means ये पूरा जो हम अगर for example we are studying this plane, okay, तो ये full plane के ऊपर काम नहीं करेगा. वो क्या करेगा, उसका कोई जो सब पार्ट है उतने तक ही वो लिमिट है उसकी. अंडरस्टैंड? मीन्स ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोल दे कि मेरा ये पूरे जो सिस्टम में है ये यही होता होगा. नहीं, इट इज लोकली, है ना. मीन्स उसको यही प्लेन में काम करना पड़ेगा. इट इज फिक्स्ड. दैट इज द कंडीशन. ओके. रिस्ट्रिक्शन है. ओके. फूरियर ट्रांसफॉर्म हेल्प्स टू एनालाइज स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल्स, helps in find the response of the LTI systems. Continuous time Fourier transform sees
for analog signals and discrete time Fourier transforms for the discrete signal। यहाँ पर भी देखो आप discrete time है तब उसका चेंज रोल चेंज हो गया है कि उसके लिए जो Fourier ट्रांसफॉर्मेशन है वो discrete टाइप का आपको लेना पड़ेगा। ओके तब ये जो इंटीग्रेशन है उसका डिडक्शन पार्ट होगा, रिड्यूस पार्ट है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ओके डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आर हेल्पफुल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर मेकिंग कन्वोल्यूशन एंड मैनी अदर सिग्नल मैनिपुलेशन मीन्स आपको कोई सिग्नल मिल रहा है लेकिन वो उसको आप आपके तरीके से सेट करना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो यूज द फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके अगर फिजिकल साइंस में उसकी एप्लीकेशन देखें, बहुत सारी इंजीनियरिंग में है, फिजिक्स में है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन उसका अगर फोकस करें तो आप देखो तो को कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, जियोलॉजी में यूज होता है, ऑप्टिक्स में यूज होता है। ऑप्टिक्स मीन्स वन ऑफ द फेमस ब्रांच इन फिजिक्स। ओके ऑप्टिक्स थियरी। ओके देन फूरियर ट्रांसफॉर्म हैज ह्यूज एप्लीकेशन इन रेडियो एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। ओके sky observed by radio telescope is recorded at the Fourier transform of true sky terms as visible in radio astronomy language, and this visibility goes through inverse Fourier transformation। ओके उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना है तो उसके लिए हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे एंड डी कन्वोल्यूस प्रोसेस टू डिड्यूस द ट्रू स्काई image। okay it is also used in medical imaging process। okay for example tomography। okay tomography में भी वो Fourier transform यूज होता है। is it okay clear? now I think you got the answer for application, am I right? Yes sir। okay there are many application and whatever your requirement you can set their transformation accordingly yourself। ओके मीन्स आपके जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके दैट इज द बिग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थियरी। ओके देन वी गो फॉर द डेफिनेशन। ओके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके मैंने जैसे बोला था वो देखो ये सबसे बड़े फादर यही है। ओके मीन्स इसी से सब कुछ बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप किए गए, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो सबसे बड़ा फादर, वो हम बोलते हैं ना राष्ट्रपिता, है ना इस तरीके का इसका काम है। द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, उसको हमने सिंबल दिया है एफ ऑफ एस, ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ द कर्नल के एस एक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रल। इंटीग्रल है इसलिए उसको आई बोल दिया है। आई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस, दिस इज द सिंबल फॉर, जैसे हम लाप्लास को एफ बार एस बोलते थे ना, ऐसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स के एस एक्स डी एक्स। अब जो पूरा जो थियरी डेवलप किया गया है वो इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके दिया गया है। ओके के, और वो के जो है वो हमारा कर्नल है, मीन्स वो पूरे इंटीग्रेशन को हैंडल करेगा, जैसे हमारी आर्मी को कर्नल हैंडल करता है ना, इसलिए उसका नेम यहाँ पे कर्नल ही दिया गया है के एस एक्स। ओके अगर के एस एक्स आपका ई रेज टू माइनस एक्स है देन इट विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इफ कर्नल will be e raised to isx then it will be Fourier complex transform। okay अगर वो कर्नल आपका sin sx है then it will be Fourier sin transform। अगर वो कर्नल आपका यहाँ पे cos आएगा cos sx है then it will be Fourier cosine transform। okay अब ये जो Fourier इंटीग्रल है उसमें आप तो सिर्फ ये दो ही स्टडी कर रहे हो ना, लाप्लास एंड Fourier। ओके लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे, देखो हैंकल, हिल्बर्ट, मेलिन, ऑल आर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके लेकिन उसकी एप्लीकेशन उसी हिसाब से जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे उसका होता है, और सभी का मेन एप्लीकेशन जो है वो ये है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ बाउंड्री कंडीशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, एनी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके एनी डाउट अप टू हियर स्टूडेंट? नो सर। ओके ये जो है वो थियरी इस तरीके से डेवलप किया गया कि पहले फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया गया, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बाद उसको लाप्लास में ले गए। ओके
लाप्लास ने लाप्लास थियरी डेवलप किया, फूरियर ने अपनी खुद की थियरी डेवलप किया, लेकिन उन्होंने जो कर्नल फोकस किया वो अलग अलग है, और वो अलग अलग है इसलिए उसकी लिमिट भी अलग अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाप्लास में क्या हो जाता है, वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाता है, ओके, और यहाँ पे फूरियर में क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिकॉज ई रेज टू आई एस एक्स जो वेरी कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कर रहा है, इसलिए उसको फिक्स कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, और उसके ऊपर से साइन कोसाइन सारे ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप किए गए। फॉर हेंकल ने खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, हिल्बर्ट ने खुद का दिया, मेलिन ने खुद का दिया, देन दे ऑल आर नेम्ड एज देयर नेम, ओके, एज पर देयर नेम। द फूरियर इंटीग्रल ऑफ, ओके, अप टू this, any confusion student, anybody, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ूं, अगर प्रॉब्लम है तो पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। सर यस, क्या थी? ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का मेन जो इक्वेशन है ना वो पेज में जाए ना, उसके आगे जो है। नहीं, अभी मैंने उसको नहीं बोला है, मेन नेम ही नहीं दिया है मैंने, देखो उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बोला हुआ ख्याति, ओके। अब मैं उसको दिखाऊंगा कि आपको कि वो कहां से आया, कैसे आया, गॉट इट? तो सर अब अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म थे, वो इंटीग्रल था इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछो। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट शांति से एक बार पढ़ना, क्योंकि जहां पे इंटीग्रल है वहां पे आपको इंटीग्रल थियरी, देखो ये पूरे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, फूरियर इंटीग्रल, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, फूरियर साइन इंटीग्रल, है ना। तो थोड़ा स्टेटमेंट आराम से एक बार पढ़ना, अगर आपने ये पढ़ने में थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो पूरा एग्जाम्पल आप सॉल्व कर देंगे और बी कॉन्फिडेंट कि मेरा मार्क्स फुल आएंगे, लेकिन ये थोड़ी मिस्टेक की वजह से पूरे मार्क्स 0 हो जाएंगे। क्लियर क्या थी? डन? यस सर। तो अभी ट्रांसफॉर्म शुरू ही नहीं हुआ, अभी ट्रांसफॉर्म हम अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं। ओके डन? ओके, अब इसको कॉम्प्लेक्स मैंने क्यों नेम दिया, क्योंकि देयर इज आई, है ना, आई यहाँ पे है, देखो ई रेज टू आई एस एक्स है ना, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स नेम दिया। यस सर। डन? ओके, अब मैं जो जाऊंगा वो मेरा मेन है, यहाँ पे देखो यहां से, ओके। नाउ इज इट ओके? एनीबडी, एनी कंफ्यूजन? यस सर। फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर इंटीग्रल में मिक्स मत करना, बी केयरफुल, ओके ओके। देन नाउ आई गो थ्रू थियरी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ से आया, देखो इसलिए हमने फूरियर इंटीग्रल पढ़ा, क्योंकि फूरियर इंटीग्रल से ही फूरियर ट्रांसफॉर्म आया है, ओके। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स डी टी डी ओमेगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये रहा था, यहाँ पे था ना, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ कॉस था। अब उन्होंने क्या किया, और यहाँ पे लिमिट था वो क्या था, 0 to था, ओके। अब फूरियर इंटीग्रल का दूसरा भी एक वर्जन है, वो ये है जो अभी हम कर रहे हैं, वो ये रहा, ये थियरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये देखो माइनस इन्फिनिटी हो गया, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स एफ ऑफ टी। अब ये कॉम्प्लेक्स लिया है उन्होंने, देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स को आपको पता है ई रेज टू आई थीटा क्या होता है, कौन बताएगा, चलो ई रेज टू आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस गुड, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में से फर्स्ट अगर आप cos थीटा वाला पार्ट लेते हो तो हमने जो भी डिस्कशन किया फूरियर इंटीग्रल का वो आ जाएगा पूरा। डन? देखो यहाँ पे क्लियर, गॉट इट? इसलिए वो 0 to इन्फिनिटी कर दिया है, गॉट इट? क्लियर स्टूडेंट? ये फर्स्ट स्टेप कितने लोगों को पता चला, रेज योर हैंड, जो अभी मैं डिस्कस किया वो। सर ये 0 to इन्फिनिटी क्यों किया हमने?
नहीं, अभी हमारा जो इंटीग्रल फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिया है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तब वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर मैं ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो वो कॉस प्लस साइन होगा। तो जब मैं कॉस वाला थियरी यूज कर रहा हूं तब वो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। डन ख्याति? हाँ, लेकिन क्यों 0 टू इंफिनिटी? उन्होंने एक ही पार्ट दिया ना, मैंने आपको समझाया ना अभी कि उन्होंने नेगेटिव पार्ट को ओमिट कर दिया। ये जो Okay, पार्ट है उन्होंने ओमिट कर दिया। ये तो मैथमेटिशियन है, कुछ भी कर सकते हैं। सर लेकिन ये ऑड है ना कॉस, तो हमें 2 इंटू 0 टू और इंफिनिटी लिखना और पड़ेगा ना। कहाँ है, और कहाँ है अरे वो? इवन, सॉरी इवन। हाँ इवन है ना। हाँ तो ये 0 टू इंफिनिटी 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी नहीं होगा? हाँ तो 2 किया ना, वो 2 कैंसिल होके तो 1/π हुआ ख्याति। ओके ओके डन। यस सर। कहाँ गया का ये रहा है ना, इसीलिए तो 1/π हुआ ना। यस सर। अब मैथमेटिशियन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना। तो अगर वो 2 टाइम्स होता है तो 2 टाइम्स होना ही चाहिए। क्लियर? ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। कितने लोगों को नहीं पता चला? प्लीज रेज योर हैंड। अगर नहीं पता चला है तो बी ऑनेस्ट एंड बताओ मुझे, क्योंकि मेरा ये जो फर्स्ट स्टेप आप अगर समझ लेंगे ना तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए बार बार आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन तो पर भी अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मुझे बताओ, तो आई विल डिस्कस यू। प्रिंस एंड कर्णा बेन, एनी डाउट? नो सर। ओके ओके, देन ये अगर फर्स्ट स्टेप अगर आपने समझ लिया, दैट मीन्स 1/2π हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, अब मैं ई रेस टू ए प्लस बी होता है मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, ई रेस टू ए प्लस ई रेस टू बी कर सकते हैं। ओके, सिमिलर, सॉरी 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 सॉरी, नॉट प्लस डॉट, ओके, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी इंटू ई रेस टू माइनस माइनस प्लस आई ओमेगा एक्स लिख सकता हूं ना मैं। Done? Any doubt, student? नो सर। ओके, देन यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया कि मेरा जो पहले dt है उसके ऊपर फोकस किया और जितने भी t वाले उसके साथ ले लिए, और मेरा जो फर्स्ट अंदर का इनर इंटीग्रेशन है वो t के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी डी टी कर दिया, और डी ओमेगा मैंने बाहर लिया, और जो ई रेस टू आई ओमेगा एक्स है उसको मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि वो दोनों में t नहीं है। ओके, नाउ 1/2π, अब जो ये बीच में लिया उसको मैंने नया नेम दे दिया एंड इट इज एफ ऑफ ओमेगा। डन? ओके, तो एफ ऑफ ओमेगा ई रेस टू आई ओमेगा एक्स डी ओमेगा हो गया। अब जो एफ ऑफ ओमेगा जो है वो मेरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेस टू माई ओमेगा माइनस आई ओमेगा टी डी टी। ओके, तो अब यही दोनों का नेम हम देंगे, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ओके, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ओके, एक हमारी ये फॉर्मूला हुई, एंड एफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला। तो अब देखो, जो एफ ओमेगा है उसको हम क्या बोलेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म, एंड जो एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्मूला है हमारे पास जो अभी मिला वो, उसको बोलेंगे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? डेरिवेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया उन्होंने, ई रेस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी। ओके, और उसमें जो टी वाले थे उनको कलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर से एक नया नेम दे दिया एफ ओमेगा, और वो एफ ओमेगा इज अवर फूरियर ट्रांसफॉर्म, एंड जो एफ ऑफ एक्स वाला है दैट इज अवर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। एनी डाउट स्टूडेंट? एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके,